So, welcome to our podcast. Today, I am joined by Dr. Kishan from Know Your Doctor. Thanks, Dr. Kishan. It's a pleasure to have you on our podcast. So, yeah, let's Thank you very much, Megang, for this opportunity. No problem. yeah. So let's Yeah. start with your journey. So, what inspired you to pursue medicine, and how did that lead you to where you are today? To be honest, the answer to this question, like, I didn't have any particular interest, but my father and my parents were after like engineering कर लेगा 10th के बाद after 11 just go for IIT and all that, but I didn't have any interest in all those science and techs in, like all those things. So I was like more interested into the human body side. So just because I don't know why, don't know why I had interest in that also, but I was like, okay, I want to do biology. Let's see what happens again. So that's how I decided to go for PCB. Even after PCB in NEET UG, I didn't get good marks. I don't know what I was gonna do. So parents told me you can go abroad also, and that's how the journey started. Like, I didn't have any goal to become a doctor. It just happened. Like, okay, after 11th, I was sure, okay, I am gonna do this. So that's how it happened. So your journey is totally opposite of mine. Actually, मेरा कभी intention था ही नहीं MBBS करने का. So till class 10 मेरे parents ने बोला कि ठीक है जो करना है कर लो. So I was preparing for IIT from class 8 to class 10. Then suddenly exam देने के बाद मुझे सिर्फ दो ही option दिया गया. तुम पहला ऑप्शन कि तुम MBBS ले लो. सेकेंड ऑप्शन तुम नहीं लोगे तो जोर जबरदस्ती घुसा देंगे. So here I am in second year MBBS. Are your parents doctors? Yeah, my father is a veterinary doctor. वो हो गया, फिर डॉक्टर घर में है तो फिर हो गया. हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उसके बाद पापा को बोला कि आपने तो 3 Idiot देखा था, तो he have watched that for 30 times around. तो मैंने उनको बोला कि आपने तो इतनी बार देखा है, then why you are like forcing me to become a that doctor? उन्होंने बोला real life अलग है, 3 Idiot अलग है, पर like same situation. मैं पैदा हुआ, उसके बाद ही उन्होंने बोला when you are born, then I thought like बेटा बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा पैदा होते ही. नहीं नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. लाइक फॉर मी दे वर लाइक आई वाज मोर इनटू कंप्यूटर गेम्स एंड स्कूल में भी कंप्यूटर में आई लाइक, मुझे इंटरेस्ट बहुत था. सो दे वर लाइक ठीक है, इसको इंजीनियरिंग करनी होगी, IIT करनी होगी, कंप्यूटर साइंस करना होगा. नो, गेम खिलवा लो, मैं गेम खेल लूंगा. बाकी ज्यादा नहीं जाना मुझे. सो आई वाज हैप्पी लाइक आफ्टर आई टुक द डिसीजन बाय माई सेल्फ एंड दे सपोर्टेड मी. सो आई एम हैप्पी एंड yeah, so here I am. So before like after NEET you have an option to join many MBBS colleges like Kazakhstan में भी लोग जाते हैं. Russia is a very popular option. उसके बाद Ukraine was a popular option. Then why you choose China? Yeah. I wanted to go Russia or Ukraine. Okay, because I wanted to just explore new things. मुझे थोड़ी ठंडी जगह पे जाना था. I wanted to enjoy that winter vibe and everything. But हुआ क्या कि one of my family members, my mama, like my mother's brother, like he has a business here in one of the cities in China. So he has been to China many times. Like twice a year he goes to China. Even my parents have been to China once or twice. So they know how is the situation there, like how is the climate and environment and how is there. And China is, technology very advanced, infrastructure very advanced, and it is becoming developed country. Okay. So, and another thing was कि you can go to China, you can visit China anytime. Like within 6 hours, within 10 hours, you can reach China. So it is easily accessible. So reason यही था कि family वाले हैं इधर and Indians भी काफी है and it is close to the country, same climatic conditions, and one of the most important point, China की internship इंडिया में valid थी before COVID came into existence. Okay. जो पुराना MCI था, if we do internship from China, we don't need to come back and do internship here. Okay. So that was the main important point. So वही प्लान था. कोविड से पहले MCI थी. अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ इंटर्नशिप कर लो, यहाँ आके सीधा जॉब यू कैन डू. FMG देके यू कैन गिव द जॉब. दैट वाज द प्लान.
सो कोविड के बाद सब कुछ चेंज हो गया. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज चाइना. बाकी रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फिलीपींस, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज थी पहले जहाँ पे आप जा सकते थे. सो दिस वाज द रीजन व्हाई आई चोज चाइना. चाइना और इंडिया का तो पहले से थोड़ा अनबन चलता रहता है, तो दैट डजंट हेजिटेट टू जॉइन चाइना कॉलेज इन चाइना. नो, वो था बट कोविड से पहले इतना भी ज्यादा नहीं था. You know, like Chinese ministers used to go. Prime Minister itself, himself, he went to China. Beijing गए थे. Jinping and नरेंद्र मोदी met himself. So अगर मिल रहे हैं, so it means वो थोड़ा बहुत तो border issues चलेगा. But अगर नहीं मिलते, then we would have thought about it. अभी बिल्कुल भी नहीं मिल रहे. कोविड से पहले the relations were good. कोविड के बाद ज्यादा बिगड़ गया. So उधर का तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एनवायरनमेंट कैसा होता है चाइना में? कॉलेजेस या एज ए इंडियन उधर कैसे ट्रीट किया जाता है लोगों को? नो, लाइक व्हाट हैपेंड वाज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अलग बैच होता है. ओके, सो लाइक वो बैच में सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहेंगे. दे विल बी इंडियंस, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज, अफ्रीकन्स, ऑल विल बी इन वन बैच. ओके, चाइनीज स्टूडेंट्स का बैच ही अलग होता है. सो बेसिकली क्या होता है, चाइना में आप सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ते हो. For Chinese students, they don't study anything in English. Nothing. For international students, they used to teach in English. Okay, and वो भी अगर समझो आपको मैं 3-4 साल में नई लैंग्वेज पढ़ा दूँ और आप मुझे वो लैंग्वेज में पढ़ाओगे तो आप कितना ही पढ़ाओगे, ज़्यादा डिटेल में तो अपने आप से नहीं पढ़ा पाओगे, राइट? सो वो क्या करते थे टीचर्स, पीपीटी बना के आते थे. वो जो कुछ टीचर्स जो यूएस जाके वापस आते थे वो हमें पढ़ाने आते थे. They used to try their best, no doubt. So ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं मिला चाइना में. The people are very good, they are very helpful and authorities are very good. एक बात ये भी है कि they are very disciplined. वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है. So you don't have democracy over there, first thing. So उनके लॉज के हिसाब से ही चलना पड़ता. So I don't think there was any problem in China. It was very good. Okay. सो एज अ इंडियन स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी अगर बाहर पढ़ने गया, बीट अफगानिस्तान, बीट यूक्रेन और बीट इन रशिया, तो पीपल जस्ट प्रीफर यूएसएमएल ओवर एनीथिंग. तो मैंने जितना देखा है, तो व्हाट इज दैट थिंग? दैट यू नो एक मिसकंसेप्शन है. बेसिकली ये बात बता दूं, लोगों को लगता है कि यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी, एफएमजी से इजी है. पता नहीं लोगों में दिमाग में रूमर कहाँ से आ रहा है, आई डोंट नो, बट इट इज ऑपोजिट. एफएमजी इज इजी एज कम्पेयर टू ऑल दीज एग्जाम्स. क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, बाहर अगर कोई जा रहा है ना, सो लाइक वहाँ पढ़ाई का कल्चर नहीं है. यू आर ऑन योर ओन. इफ यू वांट टू मैच द लेवल ऑफ इंडियन स्टूडेंट हु इज डूइंग एमबीबीएस इन इंडिया, एंड इफ यू वांट टू मैच दैट लेवल, आपको खुद से ही पढ़ना है सब कुछ. बट बाहर जाके लोगों का क्या गोल होता है, हाँ ठीक है एफएमजी देना है, लास्ट 6 महीने में कोचिंग लगा लेंगे, एफएमजी पास कर लेंगे. बट वो नहीं होता उनसे. आज तक मेरे कॉन्टेक्स्ट में इतने लोग हैं जो 10 अटेम्प्ट दे रहे हैं एफएमजी एग्जाम के लिए. 10 अटेम्प्ट किसको बोलते हैं? 10 attempts. That's a huge 10 number. अटेम्प्ट. हाँ, That's a huge number. 10 attempts. 10 अटेम्प्ट. अभी तो लोग 10-10, 12-12 अटेम्प्ट दे रहे थे. तो एनएमसी ने अभी नया रूल निकाला है कि 3 साल के अंदर आपका एफएमजी क्लियर हो जाना चाहिए. मतलब 6 अटेम्प्ट. यू ओनली गेट 6 अटेम्प्ट. पर 6 अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा होता है. अगर किसी ने एमबीबीएस में कुछ भी पढ़ा होगा ना, तो पहले या दूसरा अटेम्प्ट में निकाल ही देगा. See, it is same as NEET PG, but in NEET PG you have negative marking, in FMG you don't have negative marking. That's it. It's same level of questions. बस NEET PG में 10-20 क्वेश्चन थोड़े क्लिनिकल आ जाएंगे. मतलब क्लिनिकल मतलब वार्ड बेस्ड आ जाएंगे. अब जिसने इंडिया में इंटर्नशिप करी होगी तो वार्ड बेस्ड नॉलेज उसको होगी, ठीक है. तो वो वार्ड बेस्ड 15-20 सवाल, आई डोंट थिंक ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे थे नीट पीजी के. आई कुड सॉल्व दैट. मैंने पेपर भी सॉल्व किया था नीट पीजी का. क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस नेगेटिव मार्किंग में वो नीट पीजी में ज़्यादा दिक्कत आती है. अभी देखो इंडिया में ही रहना हो किसी को, देन BHMS इन BAMS इज बूमिंग. लाइक ठीक है, हाँ हम डॉक्टर्स उनको एज ए रियल डॉक्टर नहीं मानते, बट अगर आपको पैसे कमाना हो ना, दैट इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन. BHMS इन BAMS
वो लोगों को एनएमसी ने लाइसेंस दे दिया है टू प्रैक्टिस माइनर सर्जरीज, जनरल सर्जरी। आप अपना क्लिनिक खोलो, उसमें माइनर से माइनर सर्जरीज करो। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में फाइब्रॉइड रिमूवल की जो सर्जरी होती है, BAMS and BHMS people are doing, I don't know how. So they had their license. So they get the license. They are allowed to practice allopathy. They have been given like they have been allowed to practice some amount of allopathy, like basic minor procedures and some like that. Okay, and इंडिया में आयुर्वेदा को मानते हैं लोग, होम्योपैथी को भी मानते हैं। तो BHMS and BAMS ज्यादा कमा रहे हैं MBBS डॉक्टर्स से, टू बी ऑनेस्ट। तो BSMS का मुझे पता नहीं था कि they are allowing like surgeries का भी। Yeah, they are। मैंने बहुत देखे हैं BMS वालों को, तो बहुत देखे हैं, like literally। Yeah, so like if you want to earn money, like BMS, BHMS, even BDS is good option in India। अगर MBBS नहीं मिलता है तो that is also good option। Yeah, I recently heard, मेरे पापा ने बोला था कि there is a girl who passed out BVSC veterinary and अभी जो अंबानी का आपका वो खोला था ना कि पार्क गुजरात में, so she got there as a veterinary doctor appointment। उसमें घुसते उसका सैलरी अराउंड 1.8 lakhs के आसपास था। हाँ अभी मैं कह रहा हूँ ना, लाइक मैंने बीच में इंडिया में यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने 2 months एज ऑब्जर्वरशिप ज्वाइन किया था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU संभालता कौन है? ये BHMS डॉक्टर। BHMS डॉक्टर ICU संभालते हर जगह, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं संभालते, बट प्राइवेट डॉक्टर जाओ आप कहीं भी देखो, जो ICU संभालने का डॉक्टर होता है, जो ICU में डॉक्टर होता है, वो BHMS होता है। They know everything, they know central IV, they know how to set the ventilator, how to all the basic procedure, जनरल प्रोसीजर उनको आती है। तो BHMS ये सब कर सकता है, हम MBBS वाले भी इतना नहीं कर सकते जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है ये सब कॉलेज टाइम पे। तो यही है कि MBBS अभी बहुत ओवररेटेड हो गया, बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गया। जैसे इंजीनियरिंग का एक सैचुरेशन टच हो गया था, इसका भी होने वाला है अभी। हो गया, इसका भी होने वाला है, ऑलमोस्ट होने वाला है, 1-2 साल में होएगा। जॉब है ही नहीं नॉर्मल, अगर आप MBBS करके जॉब करो, जॉब है ही नहीं, एकदम नहीं। तो अभी इंडिया में मेन कंसर्निंग बात ये है कि MBBS के बाद जो MBBS का लाइफस्टाइल है या जो वर्क लाइफ बैलेंस है डॉक्टर्स का, बहुत खराब है। तो रिसेंटली आपको भी पता होगा कोलकाता वाला इंसिडेंट जहाँ पे रेप केस हुआ था। आई वांट टू आस्क कि आपका ओपिनियन क्या है कि इंडिया में तो वो बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज एवरी ईयर वी हर्ड समथिंग लाइक कोई ना कोई तो हादसा हो ही रहा है डॉक्टर्स के साथ। So last year I heard something in Assam also, a person came to उधर डॉक्टर का जो चैम्बर है उधर उसको मारा। So this is very common everywhere. So I want to ask what is your opinion on it? And जो चाइना में क्या ऐसा ही same work life balance है? नहीं No, like मैं चाइना नहीं, मैं US भी गया था 1 month के लिए। Like I have passed USMLE step 1 exam, so as a part of my USMLE journey I have to go there for rotations। आपको पता ही होगा, like we have to go there 2-3 months का rotations करना पड़ता है। Okay, so मैं US में भी गया था, वहाँ पे भी हॉस्पिटल में I worked, and चाइना में भी इंटर्नशिप हॉस्पिटल में करवाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। So वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। They have security in the hospital and security is like अलग लेवल की सिक्योरिटी है। वॉचमैन नीचे, वॉचमैन भी नहीं बोलोगे आप, गार्ड बोलोगे विद गन्स, नीचे खड़े रहते थे, 4 गार्ड नीचे, और हर एक फ्लोर पे 2 गार्ड तो रहते ही थे। ओके, इट वाज, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट है। चाइना का आप कुछ भी करो ना, लाइक आप छोटी छोटी चोरी भी कर लोगे ना, आपको जेल हो सकती है 1 साल की, ठीक है। और वहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो जगह जगह कैमरे लगे हैं। तो चाइना में तो ऐसा हादसा होना इम्पॉसिबल। जब मैं यूएस गया, यूएस में 2 तरीके के केयर होते हैं, लाइक लोग अपना प्राइवेट सेटअप खोलते हैं, और या तो हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स अगेन वहाँ पे गार्ड्स है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा, पेशेंट डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हर जगह कैमराज लगे रहेंगे। आपने किसी पे केस कर दिया, यू आर गॉन। बट बात आती है प्राइवेट सेटअप की, यू शुड बी हैविंग योर ओन सिक्योरिटी, बिकॉज गन कल्चर बहुत बढ़ रहा है यूएस में। ओके, जैसे इंडिया में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे इंडिया में डॉक्टर्स पे असॉल्ट बढ़ रहा है, यूएस में गन कल्चर बढ़ रहा है। सो अभी
मैं एक ही बात कहूंगा इंडिया में आने वाले अपकमिंग डॉक्टर्स को कि भाई सेल्फ डिफेंस सीख लो. जितना ज्यादा सेल्फ डिफेंस सीखोगे अपना ही फायदा है. ठीक है, स्पेशली गर्ल्स. बॉयज तो फिर भी बॉयज तो मार खा लेंगे, बट गर्ल्स पे हाथ उठाना बहुत बुरी बात है. और इंडिया में अनपढ़ लोग नहीं देखते लड़की है लड़का है. तो जो भी अपकमिंग है उनको यही कहूंगा भाई सेल्फ डिफेंस सीख लो. थोड़ा अपने आप को बचाओगे तो सामने वाला डर जाएगा, हाँ इसको नहीं हाथ लगाना है. सो दैट्स इट. अभी तो मैं यही कहूंगा. बाकी इंडिया में जो हालत है वो सिर्फ पाकिस्तान में होगी, बांग्लादेश में होगी, आजू बाजू की जो कंट्रीज है उसमें ही होती होगी. बट आई डोंट थिंक एनीवेयर एल्स डॉक्टर्स आर असॉल्टेड लाइक दिस. ओके, तो मेरा एक थिंग है लाइक जैसे इंडिया में तो बहुत खराब हालत है. सो पीपल आर लाइक whoever is doing MBBS right now in India, तो उनका फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि लाइक मैं अगर बोलूँ मेजॉरिटी पीपल लाइक प्रिपेयर फॉर USMLE. आज एट टुडे जनरेशन मेजॉरिटी आर प्रिपेयरिंग फॉर USMLE. सो मेरा ये कंसर्निंग है कि USMLE already I'm paying so much for my college fees, and USMLE also has a like you have to pay around 17-18 lakhs I guess. Yeah, 15 to 20 lakhs का बजट रहता है. So if someone don't have that much budget, so what are the other countries as per कि मैं apply कर सकूँ उधर, that is a good option. देखो करंटली अगर आपको कहीं ज्यादा चांसेस हो सिलेक्शन होने के तो US विल बी अ बेटर ऑप्शन. बट 15-20 लाख जो अमाउंट आप पे करते हो ना, दैट यू डोंट हैव टू पे एट अ टाइम. ओके, 15-20 लाख यू हैव टू पे विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years. स्टेप 1 की एग्जाम, स्टेप 2 की एग्जाम, स्टेप 3 एग्जाम, गोइंग फॉर रोटेशन. तो ये सब खर्चा एक साथ नहीं आने वाला आपका. ओके, so this will be your gradual investment rather than paying at a time. So अगर आप मिडिल क्लास भी हो, so like I think yearly आप 4 to 5 lakhs इन्वेस्ट कर सकते हो for USMLE journey. Okay, so you don't have to pay all the amount at a time. चलो अगर आपको इतना पे करना ही नहीं है, I will give you another example of London, UK. अब प्लैब में कैसा है कि प्लैब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. जहाँ तक मैंने सुना है, वेरी फ्यू पीपल गो फॉर प्लैब. वाई? बिकॉज प्लैब के जो पाथवेज है उसमें से मेजोरिटी पाथवेज में उनको इंटर्न्स नहीं, जिन्होंने इंटर्नशिप करी है वो नहीं चाहिए. दे वांट ग्रेजुएट्स हु हैवंट डन इंटर्नशिप इन देयर कॉलेज. बट इंडियन स्टूडेंट्स कंपल्सरी हैव टू डू इंटर्नशिप इन देयर कॉलेज. ओके, राइट. सो उनका जो पाथवे है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में फॉरेन में हर कॉलेज में इंटर्नशिप करना कंपल्सरी नहीं है. इट्स अप टू यू कि आपको हमारे कॉलेज के साथ इंटर्नशिप करनी है या होम कंट्री में जाके इंटर्नशिप करनी है. सो फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इफ दे वांट टू गो अब्रॉड, तो वो यूके में ये पाथवे से जा सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप ना करें, सीधा वहां से प्लैब की एग्जाम दो और वहां चले जाओ. ओके, तो लंदन में यूके के लिए आई थिंक ओनली लाइक यूके के लिए आई थिंक 7 to 8 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है. उसके बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग. ओके, AMC का दैट इज फॉर ऑस्ट्रेलिया. I don't have much knowledge about it, but it similarly follows UK. Okay. USMLE का मुझे पूरा knowledge है because I am into it. And for USMLE, as I told कि आपको gradually pay करना पड़ता है. But one mind-blowing thing that I am going to tell you is, जैसे आपकी PGY1 start होगी, ये 15 से 20 लाख रुपए आप 4 महीने में रिकवर कर लोगे. Because PGY1 एनुअली अर्न्स अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज, जो कि इंडिया में PGY3 के बाद कमाना शुरू करोगे तुम. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पे स्केल. लाइक PGY1 इन US इज गोइंग टू अर्न अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज, जो इंडिया में स्टार्टिंग में एक अटेंडिंग कमाएगा. ओके, एंड वंस यू बिकम अटेंडिंग इन US यू आर गोइंग टू अर्न इन करोड़. सो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट फॉर बिगर पिक्चर, बिगर फ्यूचर, आई थिंक it's worth trying. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इधर इंडिया में आपका जो पेइंग कम होता है पर एक्सपेंसेस भी कम होता है, तो सेम इज लाइक US में मैंने जितना सुना है कि पेइंग हाई है, एक्सपेंस भी बहुत हाई है. yes. Now see, it totally depends up to you. अगर आपकी 1-2 करोड़ की सैलरी है US में, तो उसमें से 40-50 लाख आपके टैक्स में जाएंगे. ओके, 40-50 लाख आप समझ लो. 40-50 लाख उसके बाद इट डिपेंड कि या ठीक है, इफ यू आर अर्निंग 2 करोड़ 40-50 लाख का टैक्स पकड़ लो. ओके,
फिर आपके अपने आप रेंट पे रहोगे, ऑब्वियसली वहां जाके सीधा घर तो खरीदोगे नहीं, रेंट पे रहोगे। तो रेंट में वहां पे बेसिक रूम का एक रेंट है 1 लाख रुपी पर मंथ। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको भाई एकदम हाई फाई एरिया में रहना है या साइड में भी रह के आप अपना काम कर लोगे जब तक आप ट्रेन कर रहे हो या फर्स्ट 1-2 साल में अटेंडिंग हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। एंड प्लस वहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड लाइफस्टाइल इज वेरी एक्सपेंसिव, वो परचेजिंग पावर आपकी ज्यादा हो जाती है उधर, नो डाउट। बट जो लोग ये कह रहे हैं ना, मैं इनसे ये भी सवाल करूंगा कि इंडिया का जो नया टैक्स सिस्टम आया है उसका आप क्या कहोगे? इंडिया का जो नया टैक्स सिस्टम है, पर्सन हुई, उन्होंने साफ लिखा हुआ, पर्सन हुई विल बी अर्निंग लेस देन 7 करोड़, उसके टैक्सेस गिन के उनके ऑलमोस्ट 1 से 2 करोड़ हो ही जाएंगे। सो 7 करोड़ भी भाई करोड़पति आदमी होता है, तो मिडिल क्लास तो आ गए 1 करोड़ से भी नीचे, वो कितना कमा रहा है, कितना टैक्स दे रहा है। तो सेम सिस्टम इंडिया में भी हो ही रही है। अब इंडिया में आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आपकी परचेजिंग पावर कम है, यूएस में आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो परचेजिंग पावर ज्यादा है, ऑब्वियसली दैट इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट दे हैव टू मेंटेन। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। प्लस यूएस में एक हॉस्पिटल में आप काम करोगे वीकली, सो आप 2 करोड़ कमाओगे। बट व्हाट डॉक्टर्स वो डू, लाइक डॉक्टर्स क्या करते हैं वहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो हॉस्पिटल से सैलरी आई एंड फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे संडे वो दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, तो वहां से दूसरी अर्निंग आई। अब अर्निंग इतनी सारी आएगी, तुम टैक्स में भी कितना दोगे, फिर भी सेविंग तो तुम्हारा बचेगा ना। सही बात है। ठीक है, आप महीने का आप 4 लाख रुपया 15 लाख रुपया कमाओगे, ठीक है, अगर आप अटेंडिंग बन जाओगे महीने के 15 लाख रुपए कमाओगे आप स्टार्टिंग में ही। जैसे ही अटेंडिंग आपका टैग लग जाएगा, यू आर अ सर्टिफाइड इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट, आप 15 से 20 लाख रुपए महीने के कमाओगे। उसमें से आप 5 लाख रुपए टैक्स भी दे रहे हो, आप चलो 2 लाख रुपए रेंट भी दे रहे हो, फिर भी आपकी सेविंग में 10 लाख रुपए तो बचेंगे ना। इंडिया में बचेंगे 10 लाख? नहीं बचेंगे ना। वो 10 लाख रुपए आप अपने घर पे भिजवा सकते हो। That's what the point है। लोग कहेंगे हाँ भाई ज्यादा है, जो ज्यादा है, बट सब लोग कर रहे हैं ना। यूएस में जो भी इंडियंस रह रहा है अपनी यूएस फैमिली जर्नी करने के बाद, ही इज अ मिलियनर, ऐसे तो नहीं रह रहा ना। अगर ऐसा ही सच होता तो सब लोग वहां से छोड़ के वापस इंडिया आ जाते ना। जैसे आई एम इन सेकेंड ईयर, तो मेरा भी अभी लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज कि नीट पीजी में जाना है, यूएस असेंबली में जाना है, एंड आई वाज थिंकिंग थर्ड ऑप्शन है जर्मनी। So, according to you, I feel like you are a good, like you are the right person to ask for. So, can you differentiate? Can you clarify me कि कौन सा option is better? Because when I think of NEET PG, the main back of the mind मेरा चलता है कि first of all work life balance इधर बहुत hectic होता है, बहुत ज़्यादा खराब है work life balance. Second, the amount you are getting paid. माई फादर ऑल्सो यूज टू टेल मी कि एक सर्जरी करोगे तो 50,000 1 लाख के आसपास मिलेगा, बट दैट इज नॉट रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है, बिकॉज इधर अगर मैं देखूँ एवरेज सैलरी इज अराउंड 2 to 3 lakhs, और उसके बाद जो 5-6-7 लाख वाला जो सैलरी आता है वो आते आते 40-45 साल हो जाते हैं उधर, एंड दैट टाइम इज लाइक 45। वो भी आप कॉर्पोरेट में, बड़े कॉर्पोरेट में जाओगे तभी, या जिनका अपना पर्सनल सेटअप है खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल, तो एट दैट टाइम और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया में 60 इयर्स की है, तो मैं पढ़ा 45 इयर्स टू लिव जस्ट फॉर 5 to 10 years to enjoy my life, that is not worth it. तो so I was thinking of US Assembly, पर US Assembly में I was like confused between US Assembly या Germany, which is best option. अभी जो आपने बोला कि यूके वाला सीन ही अलग होता है, तो that is totally that is less out. So अभी मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कि यूएस असेंबली और जर्मनी. So which option is better for like according to you? See, Germany जाओगे, you have to learn German. Yeah. And that is learning a new language. Believe me, I have learned Chinese. It's a very big task. Very big task. Yeah, I'm in Bangalore right now. So I'm from Assam. So कन्नड़ा सीखने में मेरी फट गई है. तुम इंडियन होके ही सेम स्क्रिप्ट की दूसरी लैंग्वेज सीखने में इतना वो तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप 1 साल जर्मन सीख के वहां से पेशेंट से फ्लुएंटली बात करोगे। अब जर्मनी में भी लोग रह रहे होंगे, तो ये कोने से लोगों की लैंग्वेज अलग होगी, जैसे इंडिया में होती है। वहां आके कुछ बोल के आप समझ नहीं पाओगे, आपकी इंप्रेशन डाउन वापस।
ठीक है ना। तो जर्मनी, नो डाउट जर्मनी, आजकल लोग जर्मनी का बहुत पूछ रहे ये है, बट उनको लगता है कि जर्मन सीखने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होता है। कोई भी नई लैंग्वेज आप सीखोगे ना, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। Yeah. Okay, so agar if you are okay with learning language and going over there, it's good for you. If you're not okay, you आपको English for speaking country चाहिए, then US is the option. Second point, आप अपने फैमिली से दूर रहना चाहते हो या नहीं? We FMGs, we have already stayed away, so we are adjusted to the situation. तो ये भी होता है, फैमिली से दूर रहना is one point. Third, आपका गोल क्या है? आपको इंडिया में ही मस्त अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छे से, थोड़ा पैसा कम मिलेगा बट आप इधर रहना चाहते हो, या ज्यादा पैसा कमाना है तो इसलिए आप बाहर जा रहे हो। So all these factors put into the place and then you have to decide कि मुझे क्या करना है। अगर आप यूएसएमएल के लिए जा रहे हो तो पैसे डाल रहे हो इतने, तो उसके लिए आपको एकदम डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। You just can't back out। Okay, ठीक है? so if I'm अगर आप So if I'm preparing for USMLE, तो उसका स्टेप कैसे करना है? अगर like you said कि USMLE है, like I get a clarity कि USMLE का ये है और जर्मनी का ये है, पर now if I want to go into USMLE, because till now I was preparing for NEET PG, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि when I get to know about whatever is happening around the globe, so I like feel like NEET PG से better है if I go in abroad, because lifestyle उधर peaceful होगा, but one thing as you said also कि उधर gunmen बहुत है लोग, that do you think that is a big deal for what I am saying? For what you are saying? gunmen जो बंदूक का कल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, pistols से। देखो यूएस में अभी गन कल्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सो लाइक वो आपके ऊपर है कि आप वो अवॉइड कैसे कर सकते हो। अकेले रात को नहीं घूमना, कहीं पे भी अकेले ऐसे एरियाज में नहीं रहना जहाँ पे ऐसा ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन एरिया इज टोटली डोमिनेटेड बाय ब्लैक पीपल। ओके, जो अफ्रीकन है, अमेरिकन है, वो सारे उधर ज्यादा रह रहे हैं, क्राइम्स वहां पे ज्यादा होते हैं। तो मेरा जो हॉस्पिटल था रोटेशंस का, मेरे को ब्रुकलिन में मिला, so I have to go there, but मेरा एक था कि मैं रात को 10-11 बजे के बाद नहीं निकलता था बाहर। जो क्लिनिक था मेरा 9 o'clock तक था, हम जाते थे 5-6 लोग साथ में, आते थे 5-6 लोग साथ में थे। तो इट्स अप टू यू कि आप वहां कैसे रहोगे। ठीक है, okay. ब्रॉड डे लाइट में आपको कोई शूट नहीं करेगा, वो बस अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा आपको लूटने की, और लूटने के बाद शूट करके जाएगा। ठीक है ना। So it's up to you कि आप अपनी सेफ्टी कैसे रखते हो। So ठीक है, सेम चीज इंडिया में भी होनी है। इंडिया में भी आप रात को अकेले कहीं सड़क पे गए, एनीवन जो अपने स्टेबल माइंड में नहीं है वो क्या करेगा, लूटपाट कर ही लेगा। बात तो सेम है। ठीक है। अब ये बात चाइना में जाओगे तो चाइना में नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि चाइना के लॉज अलग है। ठीक है, चाइना में अगर आपने किसी के साथ किया तो उनकी फांसी भी हो जाती है। तो ठीक है, चाइना बहुत स्ट्रिक्ट है। तो why you didn't choose China over USA? Because चाइना का रूल्स मैंने अभी तक जितना सुना है it is good. Then why you didn't choose China over USA? China is very good. मैं नहीं छोड़ता चाइना को, but language problem. Chinese is not like English script or something. It's totally different script. So हमने जितनी चाइनीज पढ़ी है वो बेसिक चाइनीज है, कि जिसमें हम लोगों से नॉर्मली बात कर सकते हैं, एकदम अच्छे से नहीं, नॉर्मली। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे चाइनीज लैंग्वेज की हाई लेवल की एग्जाम देनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ओनली आई कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वर्क ओवर देयर। सेकेंड पॉइंट, चाइना का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इंडिया में वैलिड नहीं है। ओके, सो मैं वहां से करके आऊँ, मैं इंडिया में वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। हो गया दूसरा पॉइंट। दैट्स इट। तो जितना मैंने सुना है तो यूएस इज अ गुड ऑप्शन लाइक फॉर इंडियन स्टूडेंट टू गो। तो आपने जितना बोला तो मैं मुझे ये लगा कि यूएसएमएलई इज अ गुड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट आफ्टर एमबीबीएस। सो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, ओके, कंसीडरिंग कि उसको नीट पीजी नहीं करना है, तो नीट पीजी लाइक मेरा तो था कि ठीक है प्राइवेट सेटअप भी अगर ओपन भी हो गया, पर लाइक इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी हेक्टिक। एनी हाउ आई हैव टू डू दी पीजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत हेक्टिक है।
एंड टॉप ऑफ इट जो अभी डॉक्टर के अगेंस्ट जो अब्यूज हो रहा है, तो दैट इज मेन कंसर्न कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, फॉर विच दे आर लुकिंग अब्रॉड. सो इफ आई एम थिंकिंग टू डू यूएसएमएलए, देन हाउ शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन? कौन से ईयर से करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, देन कैन यू गाइड मी? Okay, so USMLE की preparation you can start from the second semester of your second year. ओके. Okay, जो मिड सेमेस्टर के बाद जो सेमेस्टर आता है उस वहां से आपको शुरू कर देनी चाहिए. बस इतना पता होना चाहिए कि पैथो, फिजियो, फार्मा एंड माइक्रो ये सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ओनली देन यू कैन स्टार्ट विद द स्टेप 1 प्रिपरेशन. फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. So first, you say that I have to be strong with patho, pharma, and micro. Pharma, and physiology. Micro and physio. Okay. Yeah. Okay. ये 4 टॉपिक आपके लाइक एकदम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको आधी रात में भी कोई बता दे कि हाँ भाई ये डिजीज हुई है, मेरे को इसका मतलब मैकेनिज्म समझा मेरे को. फॉर एग्जाम्पल एक्लेसिया कार्डिया है, तो एक्लेसिया कार्डिया कैसे होता है ये पता चलना चाहिए आपको. बिना पढ़े आपको याद दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई उसमें इनहिबिटिंग न्यूरॉन्स की हो जाती है, ये वो. ट्रीटमेंट भी आपको थोड़ा बहुत पता हो जाना चाहिए. दैट शुड बी द नॉर्मल थिंग. तो वैसे आपका होना चाहिए. उसके बाद ही आप स्टेप 1 के मटेरियल्स को हाथ लगाओ. सो आजकल तो ऐसा ट्रेंड आ रहा है, लोग अभी एमबीबीएस शुरू भी नहीं किए और मेरे को बोलते हैं कि सर हमें यूएसएमएलए की तैयारी करनी है, आप बताओ कि फर्स्ट ईयर से शुरू करें. भाई मेरे को फर्स्ट ईयर में 19 सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पते थे, मैं कहाँ से बताऊँ तुम्हें. Like literally this is the situation right now. I don't know why people are just crazy about USMLE just before joining MBBS. I'm not like, ठीक है समझता हूँ इंडिया में हालत खराब है, बट यार फर्स्ट ईयर से तो मत सोचो. तुम्हें पता ही नहीं है कौन से सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस में, क्या होता है उसमें. तुम जॉन से पहले ही यूएसएमएलए कर रहे हो. सो लाइक आराम से टाइम दो. पहले के 1-2 साल तुम एंजॉय करो, एडेप्ट करो एमबीबीएस के नॉलेज के साथ. उसके बाद यू डिसाइड तुम्हें नीट पीजी करनी है, यूएसएमएलए करनी है, एएमसी करनी है, प्लैब करनी है, सब तुम्हारे ऊपर. सो यू आर इन सेकंड ईयर राइट नाउ? या सेकंड ईयर. तो मिड सेम हो गया. सो मिड सेमेस्टर हो गया. So now is the perfect time for you to start. So I have to primarily focus on patho, pharma, micro, and physio first. Yeah. So after that, how can I go for? You just have to use the USMLE resources, Boards and Beyond, First Aid Book, Sketchy Micro, and UWorld. ये 3-4 चीजें हैं जो आपको अच्छे से करनी है. You're good to go. Okay, so पहले what is the sequence of studying a topic? क्या सीक्वेंस होना चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ USMLE? ओके, फर्स्ट एड बुक आप लोगे ना, तो फर्स्ट एड बुक में सिस्टम वाइज सब कुछ दिया है. ओके, सिस्टम वाइज फिजियो, पैथो, फार्मा सब सिस्टम वाइज दिया है. सो यू हैव टू सबसे पहले बोर्ड्स एंड बियॉन्ड करके एक मटेरियल आता है. आपको वो वीडियोस देखनी है, फर्स्ट एड को एनोटेट करनी है. ठीक है, तो दैट शुड टेक अराउंड 3 to 4 months. ओके, उसके बाद एंड ऐसा क्या होता है, कुछ लोग उसके साथ ही UWorld भी यूज कर लेते हैं. Okay. So UWorld is a question bank and it is very expensive question bank. Okay, like for 6 months the subscription is around 25,000 to 30,000 rupees. So it's very expensive. Okay, and it is going to contain 4,000 questions for step 1, 4,000 questions for step 2, ऐसे होता है. So पहले वीडियोस देखो, एनोटेट करो एंड सिस्टम वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करो. तो ये जो पूरा जो करना है ना, वीडियो देख के एनोटेट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मॉक टेस्ट देना, दिस शुड बी कंप्लीटेड इन 6 to 8 months फॉर स्टेप 1. Okay, so if I start these things, तो वीडियोस में फॉर एग्जांपल पैथो का मैंने कोई भी टॉपिक अभी उठा लिया पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस से उठा लिया, तो दिस सेम थिंग जो भी मैंने यूट्यूब से पढ़ा, ये सेम कंटेंट लाइक कंटेंट तो सेम ही रहेगा या तो कंटेंट सेम रहेगा. Content will be same, but step 1 में patho is not going to be just patho. It will be a medicine. Okay. So like तुमने पैथो पढ़ लिया, नो डाउट. अब पैथो पढ़ के तुम डायग्नोस करने में इतने एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे. ओके, सो स्टेप 1 में क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे कि यू आर अ डॉक्टर, सो यू विल बी डायग्नोसिंग व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. डायग्नोस करने के बाद तुम्हें वो पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने एक्लेसिया कार्डिया को डायग्नोस किया. उसके बाद वो तुम्हें पूछेंगे कि एक्लेसिया कार्डिया में कौन सी पैथोफिजियोलॉजी डिफॉर्मिटी होती है.
तो वो जो न्यूरॉन्स इनहिबिट होती है, जो सीक्रेट नहीं होती, इसकी वजह से होती है. So that is what step 1 is all about. Okay. They are not going to ask you how will you treat the patient. They are going to ask you what is the pathological basis of a disease. But before that, you should be able to diagnose it. So basically वो चाहते हैं कि तुम diagnose करो और डिजीज के बारे में डिटेल में जाओ. सेम वे फॉर फार्मा. ठीक है, फार्मा में तुमको कोई भी अच्छा केस दे देंगे वो लोग, तुम्हें डायग्नोस करना है, तुम्हें ड्रग नहीं पूछेंगे, तुम्हें बताएंगे कि इसको ये ड्रग दी थी, इसको ये साइड इफेक्ट हुआ, अब बताओ ड्रग कौन सी दी थी. ओके, इट इज लाइक रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलरेडी ड्रग दे देते हैं, उसका ऑपोजिट से पूछेंगे वो लोग. यस, कभी कभी ड्रग दे दी, ड्रग के साइड और बोलेंगे कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पेशेंट नाउ. तो साइड इफेक्ट्स में तुम्हारा जो है वो सब तुम्हें पता होने चाहिए. ओके. फिर कभी कभी ऐसा दे दिया कि केस दे दिया, तुम्हें बोलेंगे खुद डायग्नोस करो, ड्रग दी, साइड इफेक्ट उसको ये आया, तो अभी कौन सी ड्रग दे सकते थे कि ये साइड इफेक्ट ना आए उसको. ओके. जो अपन पढ़ते तो नॉर्मली है अपन कि हाँ भाई ये ड्रग दे रहे हैं अपन, इसमें से एक एक्सेप्शन आती है जिससे साइड इफेक्ट नहीं होता है. तो पढ़ना वही है, बट इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत वास्ट है. और स्टेप 1 में टोटल 280 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, 280 to 300 क्वेश्चन आएंगे. इट इज अ 7 hour लॉन्ग एग्जाम. एक साथ बैठ के सॉल्व करना इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ टॉर्चर. और नीट पीजी में तो तुम्हें क्या है, चलो 180 में से 100 क्वेश्चन क्लिनिकल आ गए बड़े बड़े, बाकी के 80 क्वेश्चन वन लाइनर भी आएंगे, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे. स्टेप 1 में 300 के 300 सवाल, एक भी वन लाइनर नहीं आएगा, सब 15 से 20 लाइन के सवाल आएंगे अलॉन्ग विद द लैब रिपोर्ट्स. तो कभी कभी तो तुम्हें डायग्नोस करना है लैब रिपोर्ट देख के, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट के वैल्यूज, सारे एंजाइम्स के वैल्यूज सब कुछ दे रखेंगे. तुम्हें देखना है कि ये एबनॉर्मल है, ये नहीं है. एबनॉर्मल है तो तुम्हारा क्या डायग्नोसिस होगा. सो इट्स कंप्लीट डिफरेंट टास्क. तो इट्स नॉट एन इजी एग्जाम. या तो मुझे ये था कि अब इफ आई प्रिपेयर फ्रॉम लाइक माय अभी मिड सेम हो गए, तो अभी आई एम लाइक आई डोंट नो एनीथिंग. सो इफ अ पर्सन लाइक मी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, तो उसका फर्स्ट स्टेप 1 कब होगा, और उसके बीच में लाइक अभी फर्स्ट स्टेप 1 कब देना होगा उसको. देखो ऐसा नहीं होता. यूएसएमएलई की वन क्रेजी थिंग इज लाइक यू कैन गिव एग्जाम एनी टाइम यू वांट. ओके. 365 days a year एग्जाम्स कंडक्ट होता है. ओके, इट्स अप टू यू व्हेन यू वांट टू गिव द एग्जाम. ओके. ओके. ये पूरा अलग सिस्टम चलता है. तो उसके लिए अगर मैं यूएसएमएलई की बात करने बैठ गया ना, 1 घंटे से ज्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा ये. So yeah, can you brief me out? So okay, brief you out. Basically, it's like when you fill out the form for step 1, they will ask you the time period. So when you want to give the exam. For example, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अगस्त में. ओके, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू थिंक यू विल बी प्रिपेयर्ड बाय फरवरी, मार्च और अप्रैल. बाय फरवरी, ओके चलो फरवरी पकड़ते हैं. ओके, सो दे विल आस्क यू द मंथ. वो मंथ पूछेंगे तुम्हें, कौन से मंथ में तुम्हें एग्जाम देना है. तो अगर तुम सोच रहे हो कि फरवरी में एग्जाम देना है मेरे को, so they will give you the selection of months. For you it will be January, February, March. तो January, February, March ये 3 महीने में तुम कोई से भी दिन एग्जाम दे सकते हो. Okay, okay. Like you said you will be prepared in February. क्या पता गलती से जल्दी प्रिपेयर हो गई तो तुम जनवरी में भी खत्म कर सकते हो. क्या पता तुम्हारी डिले हो गई 1 महीने, तो मार्च के लास्ट वीक में भी एग्जाम दे सकते हो. तो मुझे ये जानना है कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस मुझे कैसे करना होगा कि लाइक एट द स्टडी खत्म होने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता हूँ, या फ्रॉम नाउ ऑन? नहीं. No, see, for USMLE, first you have to get registered with the ECFMG. ECFMG is a board that conducts USMLE and AMC exams. Okay. उसके बाद once you are ECFMG verified, then you can fill out the application for step 1. But वो application तभी भरने का जब भी तुम सब preparation करके बैठे हो. In your case, if you are planning to give the exam by February, तो December ending में तुम application भर दो. ठीक है? दिसंबर एंडिंग में भर दी. ये पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन करने में यूएस से वेरीफाई होके तुम्हारी कॉलेज में आएगा. पहले तुम्हारी कॉलेज वेरीफाई करेगा तुम्हारे लिए कि तुम हाँ ये स्टूडेंट मेरे कॉलेज का है. फिर वो वापस यूएस जाएगा, यूएस से तुम्हें मेल आएगा, ओके नाउ यू आर एलिजिबल फॉर स्टेप 1. सो दिसंबर के एंड तक तुम एप्लीकेशन भर दो, जनवरी के एंड तक तुम्हें कंफर्मेशन आ जाएगा. तो दिसंबर से जनवरी में तुम मॉक टेस्ट दे दो. मॉक टेस्ट में तुम्हें पता चली जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है नहीं चल रही, सही चल रही है नहीं चल रही, तुम एग्जाम देने के लायक हो या नहीं. ओके,
मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ रहा है तो जनवरी के एंड में तुम्हें सेंटर के साइट पे जाके तुम्हारी एग्जाम की डेट सिलेक्ट करनी है. ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग इन February, अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरे को 1 महीना और लगेगा प्रिपरेशन का, तो February की जगह मार्च में दोगे तुम, तो तुम्हारा तो स्टेप 1 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो अभी जनवरी की जगह तुम फेब में सेंटर की साइट पे जाके डेट सिलेक्ट करो मार्च के लिए. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो अभी बोला था आपने कि रजिस्ट्रेशन से पहले भी एक प्रोसेस है ना, आपने कुछ बोला था कि कहीं पे हमें ECFMG रजिस्ट्रेशन, ECFMG. ओके, हाँ, उसमें कब करना होगा वो रजिस्ट्रेशन? कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, आप अभी भी कर सकते हैं. तो आई कैन डू इट इन December ऑल्सो बिफोर रजिस्ट्रेशन? नहीं देखो, ये ना स्टेप 1 के जब भी तुम फॉर्म भरना चाहोगे ना उसके 1-2 महीने पहले करो. ओके, बिकॉज विदाउट दिस यू कांट गो फॉर स्टेप 1 एप्लीकेशन. तुम्हें आएगा ही नहीं स्टेप 1 एप्लीकेशन, तुमको दिखेगा ही नहीं तुम्हारे साइट पे. तो पहले ECFMG रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें तुम्हारा ईमेल आईडी पासवर्ड सब डिटेल्स रजिस्टर्ड होगा. उसके बाद स्टेप 1 का एप्लीकेशन आएगा तुम्हारे अकाउंट में. Okay, and this ECFMB registration take 10 to 15 days. Step 1 registration take 1 month. So I just want to know कि for example if I started my preparation for this USMB, so like how you manage कि college का exam और एक competitive exam, because NEET PC is a different case. After internship you can prepare 1 year and then give the competitive exam. But USMB you have to do hand-to-hand study with college exam. So how to manage it and how to do कि कॉलेज में भी खराब ना हो जाए? नहीं, कॉलेज में देखो मैं लाइक आई जस्ट यूज्ड टू पास हो जाओ उतना. तो ज्यादा कॉलेज के एग्जाम में ज्यादा वो नहीं किया मैंने. सो बट एक और बात बता दूं कि अब्रॉड में कॉलेज एग्जाम्स आर नॉट दैट टफ एज इंडियन. अब्रॉड में क्या होता है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स विल बी MCQs. 70 MCQs? मतलब 70 मार्क्स या 60 मार्क्स का MCQ होता है. रिमेनिंग 40 मार्क्स विल बी योर थ्योरी. एंड वो थ्योरी में इंडिया जैसा नहीं कि तुम्हें पेपर भरना है. 10 मार्क्स के आंसर में तुमने 5 पॉइंट भी लिख दिए जो मतलब जो कि रिलेटेड है उसके, यू विल गेट अ फुल मार्क्स. दे डोंट वांट अ लेंथी, दे जस्ट वांट अ कांसेप्ट. ओके, एटलीस्ट चाइना में तो यही सिस्टम है, तुम्हें पूरा नहीं लिखना है. यू शुड जस्ट बी अवेयर कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखना. और MCQs वो लोग हाई लेवल के पूछते हैं, but it's not an easy to pass those MCQs also. It's like a competitive exam MCQs. So जो पढ़ के जाएगा अच्छे से उसको आए 90 out of 100 भी आया है. I used to roam around 60 to 80 के बीच. Okay, so if I start my USMLE preparation तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ दोनों को, स्टडीज और इसको, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को? देखो, जब भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आएगी उसके 1 महीने पहले USMLE की प्रिपरेशन बंद. ओके, तो वही 1 महीने में तुम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लग जाओ, बाकी उससे पहले तक USMLE करते रहो. तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ बुक, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक हर्ष मोहन ओनली, जो पैथोलॉजी का इंडिया में चलता रहता है, या रॉबिन्स, उसमें लाइक कंप्लीट चैप्टर आई हैव टू रीड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, या कैसे टू गेट टू नो कि कौन से टॉपिक में मुझे फोकस करना है? नहीं देखो, आप जैसे नॉर्मली पढ़ रहे हो कॉलेज के लिए वैसे ही पढ़ो. USMLE के लिए ये सारी बुक्स काम नहीं आनी. USMLE के लिए फर्स्ट ईयर जो बुक है ना उसमें जो टॉपिक्स है ना आपको वही पढ़ने, उसके बाहर से नहीं आएगा. ओके, फर्स्ट ईयर में जितना दिया है, जो डिजीज दी है आपको सारी आपकी कवर हो ही जाएगी, ऑलमोस्ट पूरी कवर हो ही जाएगी हर्ष मोहन में, जो मेन टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, तो वो BNB आपको जो वीडियोज है ना, बोर्जन भी उनकी वीडियोज, वो वीडियोज में जितना दिया है आपको उतना ही पढ़ना है. एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना. फर्स्ट ईयर में जितने टॉपिक दिए हैं उतने ही पढ़ने, उसके बाहर से आएगा ही नहीं. तो इफ आई टेक बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स, तो विल इट कवर माय कॉलेज एग्जाम्स आल्सो, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक? नो, इट विल नॉट कवर. कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बट आप एग्जाम में थियरी में नहीं लिख पाओगे. फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू योर स्टैंडर्ड. सेम थिंग आपने जो बोला, पेपर भरना पड़ेगा इधर, तो वो भर नहीं होगा. Yeah. So first thing you said कि मुझे पैथो, फार्मा and micro. If I brief it out, what you say? पैथो, फार्मा, micro and physio should be on your fingertips. Second, you said that this is a preparation you have to start after this your mid sems are over of the second year. उसके बाद next आपने बोला कि इसका preparation time span होगा 6 to 7 months.
जिसमें मुझे Yes. 1 से 2 महीने पहले जो रजिस्ट्रेशन के 1 से 2 महीने पहले इफ EFMG ECFMG या उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद मुझे इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आई हैव टू डू मॉक टेस्ट Yeah. एंड मॉक टेस्ट में इफ माय स्कोर इज गुड देन आई कैन गो टू द सेंटर एंड गिव इट. No. You confuse one Yeah. point. ECFMG registration is आप कभी भी कर Okay. सकते हो. That is your entry into US Okay. system. Okay. ECFMG जैसे आप करोगे रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको फॉर्म आएगा स्टेप 1 का. Without ECFMG registration you won't get that form. तो ECFMG रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टेप 1 का फॉर्म भरना है एंड स्टेप 1 के फॉर्म के बाद आपको एग्जाम देने मिलेगा. So ECFMG registration you do now. Okay, you do now. You are planning for exam in February. You fill the step 1 application form in December. It will take 1 month to process. In January, they will say that now you can register, select the center. Okay? December में आपने step 1 का फॉर्म भरा, January तक प्रोसेस हो गया. जनवरी में आपको मेल आ गया कि आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो. तो जनवरी में आप पे है कि आप प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी. आप पे है कि आप सेंटर सिलेक्ट करके फरवरी में एग्जाम देना चाहते हो या नहीं. Okay, ECFMG registration is different thing. Step 1 application is different thing. Don't mix them. Okay, I got your point. तो इसके बाद आपने बोला कि उसके बाद मॉक टेस्ट देना है. मॉक टेस्ट में इफ माय स्कोर इज गुड देन आई हैव टू गो टू द सेंटर, देन आई हैव टू रजिस्टर. और उसमें मुझे मंथ सिलेक्ट करना होगा कहाँ पे एग्जाम देना है एंड दैट्स इट. Yes. फॉर एग्जांपल आपको फरवरी में बेंगलोर में एग्जाम देना है. ओके, तो फॉर एग्जांपल 28 फरवरी को आपको देना है, बट सेंटर में 28 फरवरी का फुल हो गया है, अवेलेबिलिटी नहीं है. तो 27 का देखो, 26 का देखो, 1 मार्च का देखो, ऐसे देखते रहना है. आप उसमें सिटी भी देख सकते हो, चेंज कर सकते हो. आइदर बैंगलोर, यू कैन गो टू हैदराबाद, यू कैन गो टू मुंबई, दिल्ली, एनीवेयर. There are limited centers in India that conduct USMLE exams, around 18 to 20 only. बैंगलोर है, मेरे को पता है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सारी सिटी है. You can go anywhere. So पहला मेरा स्टेप 1 होगा जिसमें I have to give written exam 280 marks 280 MCQs का होगा. Yes. 7 hours का exam. Yes. Then step 2. Yes. When I have to give? Step 2 again. Step 2 is 9-hour exam. It will include your whole MBBS course. After internship I have to give or during internship I have to give? Step 1 के बाद 3 महीने में अगर आप प्रिपेयर कर ले तो यू कैन तभी भी दे सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं. वो तो पॉसिबल है. बिकॉज नहीं, स्टेप 2 इज अ पॉसिबल थिंग. स्टेप 2 like 3 to 4 months इज इनफ. बिकॉज स्टेप 2 में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है. आप जब भी अपने 3rd ईयर और 4th ईयर में आप जो पढ़ रहे होंगे ना कॉलेज के लिए, वही सब उसमें आना है. इट विल बी जस्ट लाइक दिस. उसमें स्टेप 1 जैसा नहीं आएगा. चलो आपको डिजीज दे दी, आपको बस बताओ ट्रीटमेंट कैसे करोगे. डिजीज दे दी, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, चीटी कराना है, MRI कराना है, ब्लड वर्क कराना है, ये क्या, दैट विल बी अप टू यू. यू विल बी अ डॉक्टर, अ प्रॉपर डॉक्टर जो एडवाइस करेगा पेशेंट को. स्टेप 2 3 to 4 months में. स्टेप 2 में आपको बस यूवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना. तो इट इज लाइक सबसे जो टीडियस काम है वो है लाइक स्टेप 1 को क्लियर करना. स्टेप 1 इज द टफेस्ट. ओके, देन स्टेप 3 आपको रोटेशन करना होगा इन यूएस. नो रोटेशन अलग है, स्टेप 3 अलग है. ठीक है, रोटेशन का पार्ट अलग है. 3 to 4 months की रोटेशन आपको करनी पड़ेगी एंड देन यूएस जाके स्टेप 3 देना होता है. स्टेप 3 2 दिन का पेपर होता है. दोनों दिन थियरी होता है. ओके, या तो वो यूएस जाके ही दे सकते हैं, इंडिया में नहीं दे सकते. तो वो उसका सिस्टम क्या है, उसका लाइक डिफिकल्टी लेवल स्टेप 1 से ज्यादा होता है या स्टेप 3? कम होता है. Step 1 is the toughest, but I'm telling you, step 2 is also easy, step 3 is also easy. Step 1 is the toughest and the difficult. So like मैंने अगर step 1 क्लियर कर दिया then remaining I can do easily. You are good to go. Yeah. Okay. Step 1 is the toughest. Step 1 आपने क्लियर कर दिया ना, आपकी नीट पीजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में 20,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, गारंटेड है. Because I have seen people like जो लोग step 1 देके नीट पीजी दे रहे ना, they are winding up with 9,000 to 15,000 रैंक. तो इजीली आ जाती है. तो मैं बैंगलोर से KIMS से किम्स से मनिक मदान करके एक है, उसने भी स्टेप 1 स्टेप 2 देने के बाद he gave नीट पीजी, he got 4,000 रैंक. तो like if you are preparing USMLE आपको ऑलरेडी USMLE ऑलरेडी आपको कंसेप्चुअल इतना पढ़ा रहा है कि आप नीट पीजी के क्वेश्चंस कर सकते हो क्लिनिकल इजीली. ओके, सो बहुत ज्यादा डिटेल्स मिल गया USMLE का. सो इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर USMLE, so he will get a very
this was just सो वी गॉट अ वेरी गुड इंसाइट अबाउट यूएसएमएली। तो अभी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका हॉस्टल लाइफ कैसा था, कुछ ऐसे मेमोरीज जो आपको लगे अभी तक आपको याद है। लाइक एवरी हॉस्टलर हैड सम गुड मेमोरीज, तो आपका वो कौन से मेमोरीज थे जो अभी भी आपको याद है? हॉस्टल लाइफ बीइंग फार फ्रॉम इंडिया, तो ऐसा तो कुछ खास हॉस्टल लाइफ में था नहीं, बस वही सीनियर्स के साथ जो रैगिंग वगैरह होती है वो तो मज़ा ही आता है। रैगिंग अपना लेनी चाहिए, तभी तुम आगे जाके रैगिंग कर पाओगे दूसरों की। बट ठीक है, वो जैसे सीनियर्स बोलेंगे कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके सीनियर्स ही अपनी हेल्प करने वाले, दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। बाकी चाइना में रह के इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हॉस्टल में, फॉर एग्जांपल द बेस्ट वन इज होली। पूरा डॉम कलर से भर देना चाइनीज लोगों के लिए, दैट बिकम्स यू नो अ लिटिल बिट अनयूजुअल। कंप्लेंट्स काफ़ी होती है, बट ठीक है, इट्स रियली हॉस्टल में जो भी करो करो, लाइक सब कुछ करो। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, अगर को एड हॉस्टल्स है तुम्हारे तो जो करने मिले करो। इफ यू नो व्हाट आई मीन। लाइक माय हॉस्टल वाज को एड, तो लाइक अगर इंडिया में तो आई डोंट थिंक को एड हॉस्टल्स मिलते होंगे, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज कहीं पे भी जाओ। माय हॉस्टल वाज लाइक लकीली को एड, तो काफ़ी सारे कपल्स रहते भी थे साथ में। So yeah, so it was a plus point for all those people. तो आपने उधर गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाई? ना भाई, हम हमारे दोस्तों में इतने बिजी हो गए थे कि ये सब का टाइम नहीं मिला। जो हमारे ग्रुप में थे लाइक जिन्होंने बनाई थी, बट वो क्या लोग बोलते हैं ना, कॉलेज की गर्लफ्रेंड कॉलेज के टाइम ही रहती है, उसके बाद सब अलग। इट्स ओके भाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कॉलेज में तुम मजे कर सकते हो, नया नया एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही बात है, ये सब के चक्कर में पढ़ाई पे फोकस नहीं हटना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वुड से। अगर वो बंदी बाद में छोड़ के जा भी रही है तुम्हें, या तुम उसको छोड़ के जा रहे हो, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो उसकी बुरी हालत ना हो, या तो वो लड़की की वजह से तुम्हारी बुरी हालत ना हो। दैट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, वो मजे अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। You have chosen MBBS, so you have to take the responsibility. That's what I would say. So what is your last advice for the future medicos और अभी जो मेडिकल फील्ड में है? तो जो मेडिकल फील्ड में जो लोग आ रहे हैं, मोस्टली दे आर ज्वाइन करने से पहले ही लोगों को USMLE प्लैब ये सब करना है, ठीक है। तो सबसे पहली एडवाइस तो यही रहेगी कि फर्स्ट ईयर में तो यार 19 सब्जेक्ट के नाम भी याद नहीं होंगे तुम्हें, तुम कहाँ USMLE प्लैब के बारे में चले जा रहे हो। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट 1-2 साल आप एंजॉय करो, एक्लिमेटाइज हो कॉलेज के एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स बनाओ, फिर फाइंड समवन हु यू कैन रिलाई ऑन। एंड सेकेंड ईयर के बाद तुम एक्सप्लोर करो ऑप्शन कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या है, UK में क्या है, US में क्या है। तब तक क्या पता इंडिया में सिचुएशन चेंज हो जाए, क्या पता अमेरिकन मार्केट कोलैप्स हो जाए, इंडिया के डॉक्टर्स अमेरिका से ज़्यादा कमाने लगे। It can be anything happening. Like you don't have to plan about it just before joining the college. Like take 1 year, 2 years, decide करो and then go for it. पर इसके लिए क्या होता है, तुम बाहर जाना चाहोगे तो like you have to prepare for many exams. You have to invest a lot. So apart from university, apart from your college life, apart from your social life, you have to invest a lot in the other exams also. So Yeah, true. Yeah, so you just have to make sure कि सब कुछ स्ट्रेस फैक्टिंग ना हो जाए। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऑलरेडी स्ट्रेस आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारी सोशल लाइफ सिर्फ 4-5 साल तुम्हारे पास हॉस्टल की लाइफ होने वाली है पूरी लाइफ में। ये वापस नहीं आने वाले, ये दिन वापस नहीं आने वाले। तो अगर जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम USMLE प्लैब या सबका प्रिपेयर कर रहे हो, नो डाउट यूनिवर्सिटी एग्जाम का तो करना ही है बाय डिफॉल्ट, ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रिपेयर कर रहे हो और सोशल लाइफ तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ तुम्हारी गलती है। सोशल लाइफ को प्रायोरिटी दो, कॉलेज लाइफ को प्रायोरिटी दो, देन दिस एग्जाम। आपको लग रहा होगा अभी मैं गलत बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाई के रिलेटेड नहीं बोल रहा, बट ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। USMLE AMC आप ग्रेजुएट होने के बाद भी कर सकते हो, जब भी 30-40 के हो जाओगे तब भी शुरू कर सकते हो, बट इस कॉलेज लाइफ 30-40 में नहीं आने वाली।
तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो एमबीबीएस के टाइम और कहीं से नहीं मैनेज हो पा रहा है, लीव दैट पार्ट, वो एमबीबीएस के बाद भी कर सकते हो आप, बट कॉलेज लाइफ एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम दे शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि उसमें अगर आप फेल हो गए तो ना आपके कॉलेज के बाद आपको याद करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आपके दोस्त नहीं रहेंगे, आपका एंजॉयमेंट कुछ नहीं रहेगा लाइफ में. दैट इज व्हाट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in memories and So I guess it is a very valuable asset. So I guess it is a very valuable advice जो आपने दिया है, and it is something new to me जो मैंने अभी पहली बार को किसी ने ऐसा एडवाइस दिया कि अगर तुम्हारे से कॉलेज लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही और टॉप ऑफ दैट यू आर टेकिंग प्लेब एंड यूएसएमएलई एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू आर सैक्रिफाइसिंग योर सोशल लाइफ, देन इट इज नॉट अ गुड डिसीजन. So you can give your pleb and USMD after college life also, but college life is important. So I guess it is a very valuable advice, and thanks a lot, sir, for joining us, and we wish you a very good luck for your future. Thanks a lot, sir. thank you for providing me the opportunity and that's it. Good luck to you for all those things. और ये तुम अपने लिए भी अप्लाई करना, कॉलेज लाइफ पहले, यूनिवर्सिटी एग्जाम पहले, बाकी सब बाद में हो जाएगा, बट मस्ती करो और पढ़ाई करो, बस यही करना है. Thanks a lot, sir.